Assalamu alaikum, my dear students. Today I come with a new topic, that is strategies for successful business and group meetings. Now, strategies for successful business and group meetings. Here are two things. One is business meeting and other is group meeting. So, what strategies are there for successful business for successful business meeting and for successful group meeting. Again, I repeat, here we talk about business meetings as well as about group meetings. There are two kinds of meeting. So what is successful business meeting and what is successful group meetings? So for successful business meetings and for successful group meetings, what strategies are there? Strategies. हिकमत अमली क्या होती है, क्या होनी चाहिए, क्या हैं, तो उसके ऊपर हम स्ट्रेटजीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजीज हम यूज़ करें जो हमारे बिजनेस मीटिंग में और ग्रुप मीटिंग में सक्सेसफुल रिजल्ट में। तो ये है आपकी टॉपिक जिसके ऊपर हम अभी टॉक करते हैं। होप यू विल पे अटेंशन। So again, heading is same, strategies for successful business and group meetings. तो इसका क्या है कि background information on groups. So suppose if we talk about group meetings first, then what can we say? What we should know? The background information. Background information on groups. तो ग्रुप मीटिंग्स, जिन ग्रुप्स की मीटिंग्स होगी उस ग्रुप्स के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन चाहिए, एक इंफॉर्मेशन which tells you about the background of groups. What is the background of group? So when you receive the information about the background of groups, then it will be easy for you to make some strategies for the successful business, for the successful group meetings. So purposes and kinds of meetings. Purposes and kinds of meetings. तो वो जो आप ग्रुप मीटिंग करेंगे, तो naturally there must be purpose of the meeting, and there must be kind of meeting. तो आया बिजनेस मीटिंग, ग्रुप मीटिंग में मार्केटिंग के ऊपर मीटिंग हो रही है या किसी और इशू के ऊपर मीटिंग हो रही है, तो फिर you will come to know about the kind of meeting. Now that kind of meeting हो गई, then you will try to know what is the purpose of that meeting. If group comes and they start group discussion on the prices of different products of the people of that group, तो उसके ऊपर वो एक किस्म की मीटिंग हो गई। तो उसका पर्पस क्या है, तो उसकी प्राइसेस को हम किस तरह कंट्रोल करें, ये पर्पस है सपोज। तो इस हिसाब से in that meeting, in those meetings or in those groups, some problems will come
before the groups. Some problems will come in the meetings before the participants. So then they will try to find out the solutions of those problems and how can be the problem solved. So this is the benefit of meetings or group meetings. So after that, there is heading leadership responsibilities in meetings. Leadership responsibilities in meetings. And what are the responsibilities? कौन सी जिम्मेदारियां हैं उस लीडरशिप की उस मीटिंग में? मीटिंग में जब लीडरशिप आती है, लीडर्स आते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो मार्केट्स को चलाते हैं, ट्रेड यूनियंस को चलाते हैं, बिजनेस यूनिट्स को चलाते हैं, तो उनके एक लीडरशिप होती है. तो व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ दैट लीडरशिप जो उस वक्त चेयर में है? तो उस मीटिंग में ये भी एजेंडा हो सकते हैं. पार्टिसिपेंट रिस्पांसिबिलिटीज इन मीटिंग्स. तो फिर उन मीटिंग्स में रिस्पांसिबिलिटीज असाइन की जाती हैं, सौंपी जाती हैं, दी जाती हैं किनको? ऑल द पार्टिसिपेंट्स. every participant should take some responsibilities to control the system of markets, to control the products of their, you see that industries. So naturally जिस किस्म की मीटिंग होगी, कौन सी लीडरशिप है, किस किस्म के पार्टिसिपेंट हैं, वो पार्टिसिपेंट या लीडरशिप अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मीटिंग्स. तो उनका जो प्रोफेशन होगा उस प्रोफेशन के हिसाब से, या जो बिजनेसमैन हैं उनका किस तरह का बिजनेस है, उस बिजनेस के बाबत ही उस मीटिंग में डिस्कशन किया जाएगा. तो फिर लीडरशिप को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी और पार्टिसिपेंट्स को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी. तो ये एक हिकमत अमली होती है कि हम ग्रुप मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं ताकि सक्सेसफुल ग्रुप मीटिंग्स हो, कोई रिजल्ट आए, और उसके बाद सक्सेसफुल बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी रिजल्ट आए. तो कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ ग्रुप्स, nature of group meetings, nature of business meetings, then they prepare some agendas in those meetings and they discuss about the meeting, about the strategies for their business in those meetings. तो ये सारा एक सिस्टम होता है, पूरी हिकमत अमली तजवीज़ करते हैं और अख्तियार की जाती हैं कि वो फिर किस तरह अपने बिजनेस को चलाएं, किस तरह अपने ग्रुप्स को यूनाइटेड रखें, और किस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, हर एक पार्टिसिपेंट या लीडरशिप की कौन सी जिम्मेदारियां हैं, वो किस तरह आगे चले और किस तरह मार्केट अच्छी चले, कि मार्केट की जो रेटिंग है वो भी अच्छी हो और जो कस्टमर्स हैं उनके इंटरेस्ट में भी बातें की जाएं. क्योंकि जब ग्रुप्स ऑर्गेनाइजर्स will think about the interests of the customers, then you see that the products of their industries और वो जो कारखाना जात होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स या चीज़ें जितनी भी बनती हैं, वो कपड़े का कारखाना हो, किसी अनाज का हो, या किसी और चीज़ का कारखाने होते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज होती हैं. तो वो जब कस्टमर्स का बेनिफिट सोचते हैं कि किस तरह कस्टमर को भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो, क्योंकि कस्टमर जब चीज़ें लेगा, आपकी मार्केटिंग तब होगी जब चीज़ की एक क्वालिटी हो, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी हो,
और आपकी प्राइस कंट्रोल हो, कि वो जो बायर्स हैं उनकी अप्रोच में, उनकी एक्सेस में हो कि वो चीज़ें खरीद सकें। तो फिर आपकी डिमांड, आपकी प्रोडक्ट की देयर विल बी इंक्रीज द डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ क्वालिटी एंड बिकॉज ऑफ कंट्रोल्ड प्राइसेस। तो एक कंपटीशन होती है, तो इस हिसाब से वो सारी चीज़ें के लिए एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं ताकि वो तवाज़न में वो पूरा बिजनेस, पूरी ग्रुप मीटिंग्स मार्केट्स को चलाएं। अब वन बाय वन वी विल डिस्कस। सपोज हियर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन ग्रुप्स क्या है, वो अभी हम इसके ऊपर डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप। Purposely discourse between two or more people is a common definition of a group. यानी जब डिस्कोर्स हो या आपका डिस्कशन हो बिटवीन टू और मोर पीपल, उसको हम कहते हैं मीटिंग ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप में काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक पार्टिसिपेंट्स का, एक मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया जाता है। उसके बीच में जो डिस्कशन होता है तो उसको हम कहते हैं यू सी द ग्रुप मीटिंग्स। अब टाइप्स ऑफ ग्रुप्स क्या हैं? इनफॉर्मल ग्रुप और फॉर्मल ग्रुप। तो इनफॉर्मल ग्रुप में, इनफॉर्मल क्या होता है? जिसमें formalities are not observed। formalities जब को अख्तियार नहीं किया जाता है तो उसको हम कहते हैं, जो ग्रुप्स इनफॉर्मल होते हैं, क्योंकि फॉर्मल जो होता है वो एक सेट रूल्स और प्रिंसिपल्स के ऊपर वो फॉर्मल ग्रुप काम करता है। और इनफॉर्मल ग्रुप्स जो होते हैं वो कैजुअल और इनफॉर्मल ग्रुप मीटिंग्स आर कॉमन। मैंने चलते चलते मार्केट में कोई इशू हो गया तो 5-6 बंदे आ गए, बैठ के उन्होंने डिस्कस किया बिना किसी एजेंडे के एक इशू के ऊपर अचानक। तो ये एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है। और फॉर्मल ग्रुप के लिए क्या होता है कि उसके लिए बाकायदे तयशुदा प्रोग्राम के तहत, बाकायदा तयशुदा एजेंडा के तहत डेट फिक्स की जाती है, टाइम फिक्स किया जाता है, और किन किन को कौन से पार्टिसिपेंट आएंगे, किस लीडरशिप को बुलाया जाएगा। तो एक सेट सिस्टम के तहत वो फॉर्मल ग्रुप्स को मीटिंग्स होती हैं। और इनफॉर्मल जो है वो कैजुअल, अचानक हादसाती तौर पर इनफॉर्मल ग्रुप उसको कहते हैं। वो कॉमन होती हैं, कैसे कि मीटिंग आफ्टर वर्क विथ फ्रेंड्स, काम पूरा हो गया, अपने दोस्तों के साथ बैठे गपशप लगाई और गेट टुगेदर हो गई फॉर प्योरली सोशल ओकेजन्स। तो ये इनफॉर्मल ग्रुप मीटिंग्स है। तो अच्छा, अब फॉर्मल ग्रुप क्या है? ऑफन कॉल्ड टास्क ग्रुप्स, यानी टास्क ग्रुप्स को बुलाया जाता है अक्सर। टास्क ग्रुप्स क्या है? यानी ग्रुप्स who are assigned a task, groups who are assigned some work, groups who are assigned some responsibilities, that we call task groups। तो अमूमन फॉर्मल ग्रुप की मीटिंग क्या कहलाती है कि टास्क ग्रुप्स को हम बुलाते हैं। तो फॉर्मल ग्रुप्स often search for answers to problems। वो थिंक टैंक की तरह बैठते हैं वो फॉर्मल ग्रुप, और फिर वो सोचते हैं कि they try to solve the problems।
they try to search for answers to problem, look for a course of action. तो पहले तो उन प्रॉब्लम्स के जवाब ढूंढते हैं, हल ढूंढते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। फिर क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आ गया, उसके हल करने का तरीका तजवीज़ किया गया, then they look for a course of action। तो फिर किस तरह एक्शन लिया जाए उन डिसीशंस के ऊपर जो तजवीज़ किए गए कि these are solutions of these problems। तो make recommendations to higher authority। तो एक्शन सबसे पहले ये होगा कि उस प्रॉब्लम्स के लिए कुछ रिकमेंडेशंस अर्जदाश्त के वो बनाते हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द सॉल्यूशन, सो वी रिक्वेस्ट द हायर अथॉरिटीज टू काइंडली सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय डूइंग such and such kinds of actions to address the problems, to solve the problems। तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप तजावीज़ रिकमेंड करते हैं कि इस तरह की तजावीज़ है हमारी, सिफारिशात को लिख के फिर वो हायर अथॉरिटीज़ को पहुंचाते हैं। दिस मीन्स that you and others may meet to change a policy। तो जो पॉलिसी बनाई गई है ऑफिशियली किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, उसमें some problems are created, some hurdles are created, some obstructions are created। कुछ रुकावटें, कुछ हरकतें, कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो ग्रुप, फार्मर ग्रुप बैठता है, उस प्रॉब्लम के आंसर्स ढूंढते हैं, फिर सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, फिर एक किस तरह का एक्शन लिए जाएं। तो पहला एक्शन ये होता है कि वो कंसर्न हायर अथॉरिटीज़ को रिकमेंडेशंस, तजावीज़ या सिफारिशें लिख के भेजते हैं। तो फिर वो क्या उसमें तजावीज़ होती हैं, अमूमन ये होता है कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट की है उस पॉलिसी में इतने इतने फ़वाद ज़रूर हैं, मगर उनके साथ ये प्रॉब्लम होते हैं मार्केट के लिए, बिजनेस के लिए और कस्टमर्स के लिए। तो लिहाजा हमारी रिकमेंडेशंस ये हैं कि इस तरह से अगर अथॉरिटी विल टेक द एक्शन और मेक द पॉलिसी और चेंज द पॉलिसी, प्रीवियस पॉलिसी, and make the policy in this way or that way to solve the problems। तो इस तरह की वो recommendations भेजते हैं। तो ये हो गया एक फॉर्मल ग्रुप जो उन प्रॉब्लम्स को ढूंढता है और फिर प्रॉब्लम्स के आंसर्स और सॉल्यूशंस ढूंढता है और फिर एक लाइमा अमल तैयार किया जाता है। तो ये तो हम वही है ना कि हम स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेसफुल ग्रुप मीटिंग्स, किस तरह लाइमा अमल, किस तरह की स्ट्रेटजी तजवीज़ की जाए कि जिससे हम ग्रुप मीटिंग्स को कामयाब कर सकें। ग्रुप मीटिंग्स का कामयाब होने का मतलब क्या है कि ग्रुप मीटिंग्स में जो डिसीशंस लिए जाते हैं, ग्रुप मीटिंग्स में जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो पॉलिसी चेंज करने के रिकमेंडेशन लिखते हैं हायर अथॉरिटीज़ को और तजावीज़ देते हैं, तो उस हिसाब से वो किस तरह की पॉलिसी में तब्दीली आ जाए, किस तरह पॉलिसी में तब्दीली आ जाए, किस तरह उस सॉल्यूशंस के ऊपर अमल किया जाए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये जब स्ट्रेटजीज उसके लिए तजवीज़ की जाती हैं, यानी ग्रुप अपने लिए भी एक स्ट्रेटजी तजवीज़ करता है और गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशन देता है। तो ये एक स्ट्रेटजी है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो इसका मतलब है अगर उसका आउटपुट होता है, रिजल्ट आता है, तो हम ये कहेंगे कि ये सक्सेसफुल ग्रुप मीटिंग है। तो
इस तरह से make decisions on how a specific problem should be solved and decide on the beginning steps to implement a solution. वही मैंने अभी डिस्कस किया, आपको बताया कि जब आप तजवीज़ रिकमेंडेशन देते हैं कि वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम, वो खुसूसन ख़ास पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह सॉल्व किया जाए, एंड ये फैसला किया जाए, डिसाइड किया जाए, क्या डिसाइड किया जाए कि ऑन द बिगिनिंग स्टेप्स, शुरुआती जो स्टेप्स हैं वो किस तरह इम्प्लीमेंट किए जाएं टू इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन. तो जब तक if higher authorities or group meeting do not implement the solutions, do not implement the policy that is made by the group meeting in the light of recommendations, if higher authorities do not take action, then the problems will be there. But if the recommendations are implemented and those solutions are implemented to solve the problem, then there will be result, and that result will prove that formal group meeting has become successful. So this is the strategy. This is the way to try to find out the solutions of the problems, and to contact the higher authorities, to contact their members, to contact the leadership बैठ के सर जोड़ के उन मसाइल के ऊपर सोच के एक पॉलिसी बनाते हैं, फिर रिकमेंडेशन करते हैं, फिर वो ऊपर भेजते हैं और आप आपस में तय करते हैं कि हमें ये करना है, इस तरह से ब्रोशर्स निकालने हैं, इस तरह अखबार में ऐड देने हैं, इस तरह से प्रेस नोट देना है, फिला आदमी फिला जगह पे ये करेगा, फिला वो करेगा. तो वो सारा एक प्रेशर ग्रुप बनता है और एक माहौल बनता है जिसमें पब्लिक को भी पता चलता है, गवर्नमेंट को भी पता चलता है. तो फिर वो उन प्रॉब्लम्स के लिए अटेंशन देती है हायर अथॉरिटीज, और they call the meeting of formal groups and they sit together and discuss, and after a dialogue the concluded the dialogue or meeting, और उसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं उन डिसीजंस के ऊपर फिर वो सोचते हैं कि किस तरह इन डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाए, वो जो सॉल्यूशंस हैं उनको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएं. तो ये दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेसफुल ग्रुप मीटिंग्स. तो इनफैक्ट जो ये ग्रुप्स मीटिंग हैं, ये इनको हम बिजनेस मीटिंग्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्रुप मीटिंग जब टॉक करती है बिजनेस के ऊपर तो वो बिजनेस मीटिंग कहलाती है. बाहर वो देखते हैं आगे, अब देखते हैं कि यहाँ ये कंटिन्यूड है टॉपिक. द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स किस तरह होगी. Most groups go through 4 formative stages in becoming a group. यानी एक ग्रुप को बनाने के लिए 4 फॉर्मेटिव स्टेजेस तजवीज़ की जाती हैं. तो फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है. Here the group tries to get started. तो पहला जो फॉर्मेटिव स्टेज क्या होती है, वो ग्रुप जो है पहले यानी दे स्टार्ट वर्क. इट इज द ओरिएंटेशन फेज फॉर ग्रुप मेंबर्स. यानी ये ग्रुप जब काम शुरू करता है तो ये इस ग्रुप मेंबर्स की आपस में ओरिएंटेशन होती है, आपस में डिस्कशन होता है, आपस में एक्सचेंज ऑफ व्यूज होते हैं, सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की जाती है, फिर उनके सॉल्यूशन ढूंढी जाती है, असबाब के नजर रखते हुए फिर पॉलिसी एक तजवीज़ की जाती है, फिर वो पॉलिसी अपने ग्रुप मीटिंग भेजते हैं, फिर वो ग्रुप मीटिंग दूसरे ग्रुप मीटिंग से मिलके एक लीडरशिप जो है वो एक फिर यूनाइटेड
उसी पॉलिसी बनाते हैं और फिर वो तजावीज़ सिफारिशात रिकमेंडेशंस हायर अथॉरिटीज को भेजते हैं। तो जो 4 स्टेप्स हैं, 4 फॉर्मेटिव स्टेजेस हैं एक ग्रुप बनने के लिए, तो उसमें पहली तो ये है कि ग्रुप ट्राइज टू गेट स्टार्टेड, वो ग्रुप शुरू करता है अपना काम। उसमें कौन सा काम कि मेंबर्स बैठते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं उन एजेंडाओं के ऊपर, उन इश्यूज के ऊपर। फिर सेकंड क्या है, स्टॉर्मिंग। मेंबर्स begin to stake out their positions. They begin to have conflicts and arguments. पहले तो मेंबर्स जो हैं अपनी अपनी पोजीशंस को वाज़ेह करते हैं। फिर क्या होता है, आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स, तजादात कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। एक कोई बात करता है, तजवीज़ देता है, दूसरा उसका अपोजिशन करता है, तीसरा उसके फेवर करता है, फिर चौथा और कोई बात करता है, फिर उस चौथे के खिलाफ दूसरा कोई कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट बोलता है। तो फिर आगे चलते फिर उसमें फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो फिर मशावरत में तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ मशवरे आते हैं, different suggestions come in the group meetings. So suggestions come, so when one person who gives suggestion, he talks in the favor of that suggestion, but other member does not feel it beneficial for the solving of problems, तो फिर वो आर्ग्यूमेंट देता है। तो इस तरह से जब बाकायदा ग्रुप मीटिंग में ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, क्वेश्चंस होते हैं, कन्वर्सेशंस होती हैं और ओरल कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के साथ, तो फिर चल के आखिर में नतीजा क्या निकलता है कि वो एक पोजीशन, एक इशू वाज़ेह हो जाता है कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम को किस तरह हल किया जाए। तो ये स्टॉर्मिंग है। एक फार्मिंग हो गई, शुरू किया काम, तो आपस में डिस्कस किया, फिर अपनी दूसरा जो मेथड स्टेज है वो क्या है, स्टॉर्मिंग। नाउ थर्ड फॉर्मेटिव स्टेज क्या है, फॉर मेकिंग अ ग्रुप, दैट इज प्रोग्रेस बिगिंस हियर। अब ये ग्रुप जो है जिसने फार्मिंग शुरू की, पहला स्टेज, सेकेंड स्टॉर्मिंग, आपस में तजाद हुए, फिर आर्ग्यूमेंट्स हुए, फिर थर्ड स्टेप में क्या है, हियर प्रोग्रेस बिगिंस। तो फिर नतीजा निकलता है उस कॉन्फ्लिक्ट का, उस ओरिएंटेशन का, वो आर्ग्यूमेंट्स का। तो फिर जो बेहतरीन आर्ग्यूमेंट्स देता है किसी सजेशन की फेवर में, तो दो दोस्त और उसकी फेवर करते हैं। तो इस तरह से वो कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है और एक रिजल्ट जो है, वो प्रोग्रेस जो है वो शुरू होने लगती है। सो मेंबर्स वर्क टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तो फिर मेंबर्स जो है वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर भी काम करते हैं एंड रिकॉग्नाइज एक्सेप्टेबल काइंड्स ऑफ कंडक्ट। तो कौन सा कंडक्ट, कौन सा रवैया, कौन सा अमल काबिल कबूल है, किस किस्म के हैं, उसके ऊपर उसको जानते हैं, फाइंड आउट करते हैं और एग्री करते हैं कि ये एक्सेप्टेबल काइंड्स ऑफ कंडक्ट हैं। फोर्थ नंबर इज परफॉर्मिंग। हियर the group begins to achieve its goals. Performing means activities begin and finally they get results. तो मोस्ट ग्रुप्स जो हैं वो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप कैसे बनती है कि उनमें वो ग्रुप्स 4 फॉर्मेटिव स्टेजेस में से गुजरते हैं। then that group or those groups become a group.
जैसे फार्मिंग के ऊपर हमने बात की, स्टार्मिंग, नॉर्मिंग और फिर आखिर में परफॉर्मिंग। तो ये 4 फॉर्मेटिव स्टेजेस हैं, इनमें से हर ग्रुप को गुजरना पड़ता है, तो फाइनली वो एक ग्रुप बन जाता है और ग्रुप बिकम्स इन पोजिशन to achieve its goals, its aim, or they begin to receive the results of their actions. Still continue. अब जो ओरिएंटेशन हुई सेकेंड फेज में, यहाँ स्टार्मिंग में नहीं, फार्मिंग में ओरिएंटेशन हुई, आपस में बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, और फिर क्या हुआ जब ओरिएंटेशन हुई। अच्छा, फिर स्टार्मिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए सेकेंड स्टेप में, तो एक लिया जाता है फार्मिंग में से, क्या लिया जाता है, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन है क्या। फिर सेकेंड स्टेप में आता है यू सी दैट आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या है, नो कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है। फिर इमर्ज क्या होता है, ज़ाहिर क्या होता है, सॉल्यूशंस क्या हैं। तो ये इनके ऊपर जब हम डिस्कस करेंगे, तो फेजेस फॉलोड बाय ग्रुप इन अ सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो कौन से फेजेस, कौन सी चीजें के ऊपर एक ग्रुप उन फेजेस को फॉलो करता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो ओरिएंटेशन क्या है, हियर डिस्कशन इज फ्री फ्लोइंग। ओरिएंटेशन में हर एक अपने आज़ादी से टॉक करता है, अपने ख्यालात का इजहार करता है। तो डिस्कशन इज फ्री फ्लोइंग। पीपल ओरली वंडर अबाउट, पीपल ओरली ज़बानी तौर पर वंडर करते हैं, कभी कभी ज़बानी तौर पर ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई खास मकसद नहीं होता है। ईच ट्राइंग टू फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। तो हर एक जो है ना, वो मिर्चें निकालता है, मसाल निकालता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तजादात उभारता है, और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा फिर क्या होगा, ऐसा हुआ तो फिर ये ऐसा होगा, फिर क्या होगा। तो इस तरह से जो है ना, वांडरिंग करते, जैसे वांडर का मतलब है कभी कभी बिना मकसद के वांडरिंग होती है ना, वेरांडेज में यू वॉक, यू आर वांडरिंग इन वेरांडास, मीन्स यू आर वॉकिंग, यू आर मूविंग without a specific purpose, just to pass the time, to chat with each other in the यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह से जब टॉकिंग होती है, उसमें भी ओरली वंडरिंग होती है, यानी कोई सेट रूल्स कवायद के मुताबिक एक्यूरेट जो है डिस्कशन या बातें नहीं होती हैं, मगर ओरली वंडरिंग होती है, और हर एक कोशिश करता है सवालात क्रिएट करने की। So here, two questions are numerous. बहुत सारे सवाल उठते हैं। Members try to inform, ask further questions. Here, members' convictions are tentative and somewhat ambiguous. तो यहाँ जो members का जो तरीक़ेकार है, बात करने का जो अंदाज है, वो टेंटेटिव होता है, यानी अंदाजन होता है कि टेंटेटिवली मीटिंग 10 तारीख होगी, तो नॉट एक्यूरेटली और श्योरली। तो मेंबर्स के जितने भी ख्यालात होते हैं वो टेंटेटिव होते हैं, और कभी कभी ये होता है समवाट उसमें एम्बिग्यूअस होते हैं, नॉट क्लियर। तो एम्बिग्यूअस सवालात और टेंटेटिव सवालात वो मेंबर्स की तरफ से आते हैं और क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं। तो ये जब आपस में इस तरह सा एक प्रोसेस चलता है, दैट वी कॉल ओरिएंटेशन।
अच्छा, इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? आफ्टर द प्रिलिमिनरी स्पेयरिंग इज ओवर, शुरुआती जो है वो मामला ओवर हो जाते हैं, तो मेंबर्स बिगिन टू ऑफर ओपिनियंस एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ देयर पोजीशन। तो अब ओपिनियन फार्मिंग पोजीशन में आ जाती है कि कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया, फिर हर एक समझता है कि अब मैं क्या ओपिनियन दूं, क्या एविडेंस, क्या प्रूफ दूं इन सपोर्ट ऑफ माय पोजीशन, so that the other people agree with me. So at this phase, इस पोजीशन में इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स अकर, बुनियादी तौर पर फिर कॉन्फ्लिक्ट्स ज़ाहिर होते हैं, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स आर hurdles, problems are created at this position. जब हर बंदा, हर मेंबर अपने अपने ओपिनियंस का इजहार करता है, तो नेचुरली देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विल अकर इन द मीटिंग. There may even be resistance to the agreed upon task. जो agreed task हैं, decided task हैं, उनके ऊपर भी फिर जब इतने तेज कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तजादात तेज हो जाते हैं, तो फिर उन एग्रीड टास्क के ऊपर भी एक रेजिस्टेंस पावर बिल्डअप होता है कि ये जो टास्क जिस तरह से हम हल करने के लिए जो तजादी, वो इस तरह नहीं होना चाहिए, यानी वो जो पहले एग्रीड हो गया है, सब एग्री हो गए कि ये टास्क इस तरह होना चाहिए, तो उसको भी फिर रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं. अच्छा, इसके बाद है इमरजेंस. नाउ इमरजेंस ओपन exchanges कंटिन्यू, यानी एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंजेस होते हैं, लेना देना, वो कंटिन्यू होते हैं. इमरजेंस क्या होता है, ज़ाहिर क्या होता है? मेंबर्स बिगिन टू सर्च फॉर वेज ऑफ ट्रूली सॉल्विंग प्रॉब्लम. यहाँ एक्सचेंजेस ऑफ व्यूज कंटिन्यू होते हैं, तो आखिरकार इमरजेंस होता है. क्या रिजल्ट आता है? ज़ाहिर इमर्ज होता है, ज़ाहिर होता है, उसमें निकलता है. क्या निकलता है? वेज ऑफ ट्रूली सॉल्विंग प्रॉब्लम. तो वो रास्ते हमें मिलते हैं कि हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स. फिर कंप्रोमाइजेस अकर, तो उसके बाद ज़ाहिर है जब ट्रूली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस आ जाएंगे, वेज आ जाएंगे, तो नेचुरली compromises will occur, compromises will happen, and there is a decrease in conflict and sincere movement toward decreasing differences in opinion. तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट जो है, तजाद है, वो दोस्ताना में तब्दील हो जाता है, कम तजादात कम होते जा रहे हैं, धीमे धीमे हो जा रहे हैं, तो फिर जो डिफरेंसेस इन ओपिनियन है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं, और फाइनली जो है वो एक कंक्लूजन, एक कंसेंसस के ऊपर या अक्सरियत मेजॉरिटी राय के वोट के हिसाब से एक चीज डिसाइड करने तक पहुंच जाते हैं. तो ये इमरजेंस है. नाउ the orientation of the meeting groups gave the shape of decreasing the differences in opinion, and finally they find out the solutions of problem. अब solutions आ गया, तो solution क्या है? हल. क्या हल है उस मसले का? A positive attitude exists at this phase. जब
नाउ वी टॉक आर सॉल्यूशन, बाबा ये सॉल्यूशन है, ये भी है, ये भी है, एक 4 सॉल्यूशंस हमारे सामने इमर्ज हो गए, जाहिर हो गए मीटिंग के सामने, उसके सारे के सारे शॉर्ट लिस्टेड हो गए, सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारे ओपिनियंस, और 4 सॉल्यूशन सपोज टेबल पे आ गए। तो यहाँ now positive attitude starts. Options have been discussed. तो फिर उन सॉल्यूशंस में ऑप्शंस के ऊपर, तरजीहात के ऊपर डिस्कशन होता है, एंड क्राइटेरिया, कसवटियाँ फॉर मेजरिंग दोज ओपिनियंस, फॉर मेजरिंग दोज ऑप्शंस हैव बीन व्यूड। जो ऑप्शंस तय किए जाते हैं फिर, तो उनको नज़रसानी, उनके ऊपर नज़र डालने के लिए कौन सी क्राइटेरियाज, कौन से ऑप्शंस लिए जाएं कि रिजल्ट तक पहुंचा जाए। Now this is the time to complete the task and agree upon a solution. यहाँ finally the group meeting members reach a consensus, reach a solution, and they concluded meeting with some agreed solutions to solve the problem. So this is the background information on groups. कि उन ग्रुप्स का बैकग्राउंड क्या है, कि वो ग्रुप्स क्या करते हैं, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तभी जाकर वो जो वक्त बहुत time to time problems are created in the market, time to time problems are created, you see that in business community, and time to time there suppose problem of law and order, सफाई सुथराई के ड्रेन्स, पानी बहते हैं बाहर और सिक्योरिटी नहीं है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनके लिए सॉल्यूशंस क्या होनी चाहिए, खुद कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, खुद वो कम्युनिटी भी अपने तौर पर स्टेप्स उठाती है, और बाकी तजावीज़ या रिकमेंडेशंस वो कंसर्न अथॉरिटी को भेजते हैं, और प्रेशर डेवलप करते हैं थ्रू पब्लिक आल्सो, कि वो हायर अथॉरिटी is motivated to do something to solve their problems by acting on those, you see, that ways which are the solution to solve the problem. The purposes and kinds में I counted the slides कि मैंने एक जो है 45 मिनट्स लिए हैं सिर्फ 4 स्लाइड्स के ऊपर। तो purposes and kinds of meetings, इंफॉर्मेशनल मीटिंग्स होती हैं, उसमें दूसरा जो अब हेडिंग है कि काइंड्स ऑफ मीटिंग, तो ये जो हमने पहले शुरू से ये क्या है ना, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन ग्रुप्स, ये हमने डिस्कस किया। अब सेकंड जो है वो पर्पसेस एंड काइंड्स ऑफ मीटिंग्स, अभी तीन और रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा आप अपने जहन को तेज करें कि इंफॉर्मेशनल मीटिंग क्या है। कि इंफॉर्मेशनल मीटिंग सीक ओनली टू क्लेरिफाई, टू मेक समथिंग क्लियर, टू गेन इंफॉर्मेशन, अनाउंसमेंट ऑफ न्यू मिशन स्टेटमेंट। ये फिर अपनी पॉलिसी को अनाउंसमेंट करते हैं और बताते हैं कि हमारा न्यू मिशन स्टेटमेंट ये है। उसके बाद सजेस्टेड सॉल्यूशन मीटिंग्स, तो सॉल्यूशन
सजेस्टेड सोल्यूशन क्या है मीटिंग्स के लिए? ओनली सॉल्यूशंस आर सजेस्टेड फॉर अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल और फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो वो जो सॉल्यूशन सजेस्ट क्या कौन से सजेस्ट किए जाते हैं कि वो सॉल्यूशंस आर यू सी दैट सजेस्टेड थ्रू विच दे कैन अचीव पर्टिकुलर गोल। वो खास मखसूस जो गोल है, एम है, काय के लिए? फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए नेचुरली पर्टिकुलर गोल, जो पर्टिकुलर सजेशन चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए और जो सजेस्ट की जाए कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी सॉल्यूशंस हैं, उसके लिए वो सजेस्ट करते हैं। नंबर थर्ड, पर्पस एंड काइंड्स ऑफ मीटिंग क्या है? और पर्पस में प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग्स ना, पहले तो ये पर्पस सॉल्विंग हो गया। और अब काइंड्स हैं, कौन से काइंड्स हैं? प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, बेनिफिट, एक्शन। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग्स हैं। अब सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मीटिंग्स आर ग्रुप्स। authorization for a committee. You may be asked to form a committee to solve a specific problem. तो हर specific problem के लिए एक committee बनाई जाती है। फिर charges to committee must be vividly clear. The precise problem to be solved must be unambiguous. तो उसको उस specific प्रॉब्लम सॉल्व के लिए एक कमेटी बनाई जाती है और उसको कहा जाता है कि आप रिपोर्ट दें जो प्रिसाइज हो, क्लियर हो, और प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व किया जाए वो टोटली वो रिपोर्ट अनएम्बिगुअस हो, नॉट एम्बिगुअस, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट कि हाउ कैन वी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, यू गिव द रिपोर्ट, सो दैट यू सी दैट स्पेसिफिक कमेटी फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम given the assignments to solve the problem, and for solving the problems they have to submit the report. Now, methods of solving problems in meetings. अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के लिए कोई तरीके होने चाहिए। वो 4 स्टेप्स आर इन्वॉल्व सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मीटिंग्स। एक तो बैकग्राउंड एनालिसिस, हर प्रॉब्लम का, हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है। तो उस बैकग्राउंड को जब एनालिसिस करते हैं तो फिर हमें पता लगता है। सॉल्यूशन डिस्कवरी और सॉल्यूशन इवैल्यूएशन, चॉइस ऑफ एक्शन। वो मीटिंग में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये 4 स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व किए जाते हैं कि वी कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इन द these problems by these 4 steps. Background analysis, अब ये बात से बात निकलती है ना कि अब एक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम से 4 स्टेप्स हैं। कौन से हैं? 1 2 3 4 है। तो ये 4 स्टेप्स जो है वो एक है बैकग्राउंड एनालिसिस। अब इसके ऊपर बैकग्राउंड एनालिसिस तो हमने कह दिया, मगर बैकग्राउंड एनालिसिस है क्या? Now, background analysis में state the problem or question in an affirmative tone. उस प्रॉब्लम को आपने एक्सप्लेन करना है या क्वेश्चन को बयान करना है इन अ पॉजिटिव टोन। इन अफर्मेटिव टोन का मतलब पॉजिटिव टोन, मुस्बत अंदाज में आपको प्रॉब्लम या क्वेश्चन को बयान करना है। तो affirmatively stating the central issue is more effective than stating the issue in the negative. अब सेंट्रल इशू को अगर हम पॉजिटिव अप्रोच में, अफर्मेटिव अप्रोच में रखेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा देन स्टेटिंग द इशू इन नेगेटिव। हम मजमूई तौर पर हमारा जो नेचर है सोसाइटी में
कि जब भी कोई बात करता है तो नेगेटिव करता है, मसाइल को बता ये है ये चीज़ें, फिर ये, यानी मुस्बत एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि वही इफेक्टिव होता है। अब एक है नेगेटिव वर्डिंग्स, एक है अफर्मेटिव वर्डिंग्स। हाउ नॉट टू हैंडल पर्सनल डिसमिसल। और अफर्मेटिव, व्हाट शुड बी आवर प्रोसीजर इन डिसमिसिंग पर्सनल फ्रॉम देयर पोजीशंस। तो हम पर्सनल नहीं होने चाहिए, हमें यानी सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यानी जाती तौर पर हम अपने पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करें कि जो मुझे पसंद है नापसंद है उसको हम इन्वॉल्व नहीं करें, मगर जो हकायक हैं ऑन ग्राउंड्स, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं उसको देख के हम अपने पर्सन को डिटैच करें, तो उसको फिर हम जो तजवीज़ देंगे तो उसको हम अफर्मेटिव वर्डिंग में ले आएंगे। विच काइंड्स ऑफ रिलेटेड बिजनेस शुड वी अवॉइड। तो ये है नेगेटिव। विच काइंड्स ऑफ, यानी ये है कि भाई कौन सी बिजनेस रिलेटेड बिजनेसेस हैं वो उनको हम अवॉइड करना चाहिए। नेगेटिव है, अवॉइड करो, ख़त्म करो, ये करो वो करो, मगर इन विच रिलेटेड बिजनेस शुड वी कंसीडर एक्सपांशन। तो जैसे होता है ना, मुझे आधा भरा हुआ गिलास मिला है, मुझे दूध का आधा भरा हुआ गिलास मिला है, ये अफर्मेटिव वर्डिंग है। और एक कहता है मुझे आधा गिलास, मुझे दूध का आधा गिलास खाली मिला है, आधा गिलास मिला है। वो कहते हैं आधा भरा हुआ मिला है, वो कहते हैं आधा खाली मिला हुआ है। तो आधा खाली मिला है, दिस इज नेगेटिव अप्रोच। और वो कहता है आधा भरा हुआ मिला है, तो ये अफर्मेटिव है। तो ये अफर्मेटिव हमेशा प्रोडक्टिव होता है और ये इफेक्टिव होता है और इसके असरात भी पॉजिटिव होते हैं। बैकग्राउंड एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। डिफाइन एंड लिमिट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को लंबा नहीं करें, प्रॉब्लम को डिफाइन करो, ये प्रॉब्लम है, उसको लिमिटेड उसी स्पेसिफिक फोकस में डिस्कस करो। और each of the previous affirmative questions require some definitions. तो वो जो previous affirmative questions हैं, मुस्बत सवालात हैं, उनको हम डिफाइन करें। वो सवाल रखें जिसमें तजादात न बढ़े, यानी मुस्बत माहौल बने। Positive affirmative atmosphere should be created in the meetings, so that we can reach the conclusion of solving the problem. This information is usually included in the authorization memorandum or in the initial stages of a group meeting. इसके बाद collect facts on the history of the problem. History of the problem, जैसे history of the patient होती है कि भाई इस पेशेंट को फिलहाल टाइम से ये बीमारी हुई थी, फिर ये हुई थी, अभी ये फिलहाल टाइम से ये दवाई खा रहा था, फिर ये दवाई खा रहा था, ये असरात हुए थे, ये फ़ायदा हुआ था। तो हिस्ट्री ऑफ प्रॉब्लम एक ब्रीफली लिखी जाती है और वो डॉक्टर के सामने आती है। तो डॉक्टर वो हिस्ट्री को देख के फिर कुछ सवाल करता है, टेस्ट लिखता है, फिर वो उस हिस्ट्री के पस मंज़र में और सवाल के पस मंज़र में वो प्रिस्क्राइब करता है दवाई और पेशेंट को फ़ायदा होता है। तो इसी तरह हम कलेक्ट करते हैं फैक्ट्स को, किसको, हिस्ट्री ऑफ प्रॉब्लम्स। हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम्स को जब पता लग जाएगा तो सेवरल क्वेश्चंस एंड अदर्स रिलेटेड टू गैदरिंग इनिशियल डेटा। हाउ लॉन्ग हैज द प्रॉब्लम एग्जिस्टेड, पहला भाई ये प्रॉब्लम कब से है। डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के सिम्टम्स क्या हैं, निशानियाँ क्या हैं। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की एक्सटेंट क्या है, किस हद तक ये प्रॉब्लम है। सोल्यूशन डिस्कवरी। अब सोल्यूशन डिस्कवरी यानी डिस्कवर किस तरह करते हैं, सोल्यूशन किस तरह फाइंड आउट करते हैं। पहले तो एस्टेब्लिश क्राइटेरिया, एक कसौटी एस्टेब्लिश करें। आस्क योरसेल्फ
what are the some of the frequently used criteria applied in a problem solution meetings? वो क्राइटेरिया कौन सी हैं जो उस प्रॉब्लम सॉल्यूशन मीटिंग्स में यूज की गई हैं? इफ यू आंसर्ड फेयरनेस, वर्कबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, फेयरबल कॉस्ट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वुड बी अमंग द मेजॉरिटी। तो फिर वो जो सॉल्यूशंस को, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जो क्राइटेरिया थी वो कौन सी थी? कि भाई फेयरनेस कैसे है, और प्रैक्टिकल कितनी चीज़ है वो, और काबिल कबूल कितनी है, और फेयरबल कॉस्ट कौन सी होनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट है वो रिटर्न कैसे होगा। तो ये चीज़ें, ये सॉल्यूशंस डिस्कवर करने होते हैं। तो फिर वो करते हैं हम एक एस्टेब्लिश क्राइटेरिया के ऊपर एक तयशुदा कसरत को इस्तेमाल करते हुए। तो लिस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ पॉजिटिव वे। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपस में सर जोड़ के बैठ के अपना अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ पॉजिटिव वे ऑफ गेटिंग ऑल सॉल्यूशन वेरिएशंस ऑन द टेबल। उसी टेबल पे, मीटिंग टेबल पे हम सारे मुख्तलिफ सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कस करते हैं पॉजिटिव वे में। हाँ, ये तो बात ठीक है, मगर इस तरह से अगर किया जाए तो फिर ये हो सकता है कि ये इस तरह हो जाए, तो दूसरा सर को हिलाता है, हाँ ये ठीक है। तो इस तरह फिर वो दूसरा कहता है नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये अगर इस तरह किया जाएगा तो इसका सोल्यूशन ये इस तरह ढूंढा जाएगा तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा जल्दी और मुस्बत तरीके से सॉल्व होगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ आदमी मुख्तलिफ ख्यालात अपने टेबल पर रखते हैं, और फाइनली दे डिसाइड one you see that solution, decide some solutions to solve the problem। तो ये है solution evolution choice of action। अब ये एक 4 5 6 7 okay। Now it's time of break, and after short break again we'll meet। Yes, after short break I continue my lecture। So now we talk about the leadership responsibilities in meetings। मीटिंग्स में लीडरशिप की बहुत सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी होती है। क्या कह के जैसे फर्स्ट सेकंड को हम छोड़ के अगर थर्ड पे आ जाएं, काइंड्स ऑफ लीडरशिप, तो उसमें वो जो ऊपर वाली 2 हैं वो आई रीड अगेन बट आई फील इट्स नॉट रिलेटेड विद दिस हेडिंग, so we leave it। now we come to the kinds of leadership। now what are the kindship, what are the kinds of leadership? उसमें एक तो अथॉरिटेरियन है, ऑफ हाई अथॉरिटी, हाई कंट्रोल। सेकंड है लीडरलेस मीटिंग, और थर्ड है डेमोक्रेटिक मीटिंग। तो पहली जो अथॉरिटेरियन वो क्या है? उसमें डोमिनेट्स डिस्कशन। हियर लीडरशिप जो है, जहाँ अथॉरिटी है तो वो डोमिनेट करती है पूरे डिस्कशन, एंड दैट अथॉरिटी, दैट पावरफुल पर्सन who controls the meeting, he praises those who agree with his or her position। वो हमेशा उन लोगों की प्रेज करता है, तारीफ करता है जो वो उसके बात से एग्री करें। तो फिर वो क्या कहता है कि he praises those persons who agree with him। जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एग्री करते हैं तो फिर वो उनकी तारीफ करता है, और बाकी जो दूसरे हैं उनको कहता है आई डोंट एग्री विथ यू।
you stop talking in this way. That authoritarian power dominates the discussion, dominates the meeting. Nobody, you see, that expresses his feeling, his or her feelings clear, independent. Or sometimes he speaks loudly, issues orders and commands, suggests that higher authority supports his or her position. हमेशा वो expose करता है, impose करता है सबके ऊपर, और proudly say that I am authority because higher authority supports me. Prime Minister supports me, Chief Minister supports me, Governor supports me. What are you talking? What I say you understand. That's in the interest of meeting. That's in interest of department. So his views are his, you see, the opinions. He agree with me, and so his opinions are okay. So in this way, that you see that authoritarian जो लीडरशिप होती है वो हमेशा डोमिनेट करता है डिस्कशन, वो मीटिंग कंट्रोल में चलती है. तो लीडरलेस में क्या होता है, दिस इज ऑलमोस्ट एज बैड एज द अथॉरिटेरियन. यानी अथॉरिटेरियन मैक्सिमम एक्सट्रीम होती है और लीडरलेस फिर बॉटम डाउन आ जाती है. क्योंकि बट हियर the leader delegates all direction and decision making steps to others. तो जो लीडर है वो दूसरों को अपने अख्तियारात मुंतकिल कर देता है. तो दिस पर्सन बिलीव्स इन शेयर्ड लीडरशिप. उसमें अथॉरिटेरियन मीटिंग में जो अथॉरिटी है, he cannot allow anybody who comes against him. He controls the discussion, and only he praises those persons who agree with him. But in leaderless, here the leader always, you see, that believes that leadership, the person believes in shared leadership. यानी सब लीडर हैं, और सब लीडर है तो फिर तो काम नहीं चलेगा. सब ड्राइवर हो तो गाड़ी एक कैसे चलेगी. Allowing high ability people to run the meeting. जो हाई एबिलिटी के लोग होते हैं उनको कहता है कि आप चलो, आप बात करो. तो while sometimes successful, there is need for someone to offer some guidance, some positive feedback to the group that something has been achieved. तो लीडरलेस भी एक जो डायरेक्शन उसका कोई खास नहीं होता है, तो देन शेयर लीडरशिप होती है, और फिर उस डिस्कशन में सब लोग जो है बातें करते हैं, तो वो मीटिंग कंट्रोल में कम रहती है. और डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, ये लीडरशिप के काइंड्स हम बात करें तो उसमें participative, you live in a democracy, you know that all points of view have the right to be heard. And in democracy, every should be heard. Any points come from any corner in democracy, those should be heard, those should be considered. So you also know that in such an environment, the group has the final authority. उसमें फिर डेमोक्रेटिक लीडरशिप में एक ग्रुप होता है, उसको अथॉरिटी होती है. एक बंदा का एक अथॉरिटी नहीं होती है. जैसे अथॉरिटेरियन में एक आदमी को अथॉरिटी होती है, वो डिस्कशन को डोमिनेट करता है, मीटिंग को कंट्रोल करता है. मगर इस डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव में एक सबको हक होता है कि अपनी राय का इजहार करे, सबकी सुनी जाती है. मगर डिसीजन जो है वो फाइनल अथॉरिटी जो है वो एक the group has the final authority. The groups will vary in their ability
to make decisions. अब ग्रुप में मुख्तलिफ एबिलिटीज के आदमी बैठे होते हैं तो उनकी भी डिसीशंस वेरी करती है। एक बात करता है, दूसरा दूसरी बात करता है। Your major goal is to help the group make the best decision possible rather than force them into it. तो डेमोक्रेट लीडरशिप क्या होता है कि that leader becomes a torch bearer or light bearer. So he guides the group to reach a better decision to achieve the major goals. So he helps the group to make you see the decisions. So the democratic leadership also, its responsibility is to help the group make the best decision possible rather than force them into it. जबरदस्ती नहीं करती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप में, जबरदस्ती नहीं होती है, मगर एक गाइडलाइन दी जाती है लीडर्स की तरफ से कि लोगों को फैसला करने में आसानी होती है। यानी लीडरशिप जो है वो थिंग्स को बिल्कुल क्लियर करके हर साइड से, हर एंगल से उस मसले को सामने क्लियर किया जाता है, डिसाइड नहीं करता है, मगर इतना क्लियर रोशन होता है, प्रॉपरली टेबल पे डिस्कस होता है कि ऑल द पार्टिसिपेंट्स फील इजी टू डिसाइड अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। So your major goal is to help the group make the best decision possible rather than force them into it. You facilitate productive group discussion. यानी रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कशन होना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कशन कैसे होगा कि यू फैसिलिटेट थिंग। फैसिलिटेटर कौन होता है? जो ज्यादा जानकारी रखता है, तो वो हर उस मसले को यानी मल्टी साइड से देखता है कि इसकी ये इस एंगल से देखता है, उससे देखता है, उस एंगल से देखता है, चारों तरफ ऊपर नीचे, वो सारी चीजों को वो डिस्क्राइब करता है बिल्कुल क्लियर। तो वो फैसिलिटेट करता है उस ग्रुप डिस्कशन में कि वो जो है ना प्रोडक्टिव ग्रुप डिस्कशन आ जाए। प्रोडक्टिव ग्रुप डिस्कशन कब होगा? जब उस ग्रुप को फैसिलिटेट किया जाए। मिसाल के तौर पर उनको एक क्वेश्चनर दिया जाता है, तो अब एक क्वेश्चनर एक बंदे को होता है, दूसरे को होता है, तीसरे को होता है। अब वो हर ग्रुप उस क्वेश्चनर को डिस्कस करता है और फिर फाइनलाइज करके उनके आंसर्स या सजेशंस या रिकमेंडेशन रखता है। फिर वो तीनों चारों ग्रुप्स के जब वो क्वेश्चनर्स के रिकमेंडेशन आ जाते हैं तो उनको देख के फिर जो फैसिलिटेटर होते हैं उनमें शॉर्ट लिस्ट करके एक डिसीजन बनाते हैं जो सबकी डेमोक्रेटिक वे में डिसाइड किया जाता है, जमहूरी अंदाज में। सो इनवाइट minority opinions, evaluate unsupported generalizations and clarity vague statements to achieve such a lofty profile is possible with work. तो फिर जो minority opinions है उनको भी कंसीडर किया जाता है, उसको भी हर तरफ से देखा जाता है, डिस्कस किया जाता है और उनको इवेल्यूएट किया जाता है, उसको बिल्कुल एनालाइज किया जाता है। तो फिर उनको भी पता लगता है कि उनका जो ओपिनियन है वो उसमें क्या वीकनेसेस हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं या कौन सी कमजोरियां हैं। मगर उसके ऊपर डिस्कस करते हुए अगर उन मिनॉरिटी ओपिनियन में से भी कोई ओपिनियन इमर्ज होता है कि नो यस दिस ओपिनियन, दिस सजेशन इज वेरी फाइन एंड इट कैन बी हेल्पफुल टू डिसाइड to solve the problem. अच्छा, ना ये स्टाइल्स हैं आप लीडरशिप की।
ऊपर से अथॉरिटेरियन है, फिर सेकंड नंबर पे डेमोक्रेटिक है, फिर लीडरलेस है। ये क्या है? ये लीडरशिप स्टाइल है। लेवल्स ऑफ कंट्रोल, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ लेवल्स ऑफ कंट्रोल। हाई कंट्रोल अथॉरिटेरियन में आप देखते हैं कि बिल्कुल हाई प्रोफाइल, हाई लेवल पे है इसकी अथॉरिटी। वो सारा डिस्कशन को डोमिनेट करता है और उसका जो कंट्रोल होता है मीटिंग के ऊपर उस लीडरशिप का, तो उसके ओपिनियन से कम ही लोग अपोज करते हैं उसको, ज्यादातर लोग उसको फेवर करते हैं। तो उस ये लीडरशिप जो है वो उसकी पूरा कंट्रोल ये लीडरशिप रखती है। जो ये जिस किस्म की अथॉरिटेरियन लीडरशिप होती है वो उसका हाई कंट्रोल होता है। अच्छा, डेमोक्रेटिक क्या है? ये एक मीडियम कंट्रोल होता है, न ऊपर होता है ज्यादा न नीचे होता है, एक दरमियाने। वैसे भी दरमियानी बात होती है वो बेहतर होती है। दरमियानी बात डेमोक्रेटिकल वे में अगर डिसाइड की जाती है तो सबको पसंद आती है और वो प्रोडक्टिव डिसीजन होती है। अच्छा, लीडरलेस लो कंट्रोल, यहाँ जब लीडर नहीं है तो जाहिर है हर एक पार्टिसिपेंट अपनी अपनी बात करता है तो एक शोर और हंगामा जैसे हो जाता है। मगर उस लीडरलेस जो डोमिनेट करे या कंट्रोल करके एक मीटिंग को चलाए, वो लीडरशिप न होने की वजह से वो लीडर्स क्या करते हैं कि वो हैंड ओवर करते हैं अपनी अथॉरिटी टू अ ग्रुप ऑफ एबल पर्सन। उनको कहते हैं कि आप इसको इस मीटिंग को रन करो। तो फिर वो भी कोशिश करके एक लेवल पे एक डिसीजन तक पहुंच जाते हैं, फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिसीजन लेते हैं। तो उसमें इस लीडरलेस लीडरशिप का जो स्टाइल है वो उसमें मीटिंग को बिल्कुल लो कंट्रोल होती है। तो ये आपका स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है। अब हम आगे चलते हैं। ये है प्लानिंग स्टेज, एक, दो, एक, दो, तीन, चार, planning steps before the meeting. तो मीटिंग से पहले प्लानिंग स्टेप्स उठाए जाते हैं। वो कौन से हैं? क्योंकि जब प्लानिंग स्टेप्स शुड बी टेकिंग, होमवर्क किया जाए शुरू में कि मीटिंग कंडक्ट करने से पहले ही some steps are planned to conduct the meeting, then that meeting will be productive, that meeting will be result oriented, उसके अच्छे नतीजे निकलते हैं। तो प्लानिंग स्टेप्स में क्या होता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिव्यू द प्रॉब्लम एंड डिटरमिन द प्रिसाइज पर्पस। आप प्रॉब्लम्स के अगेन रिव्यू करते हैं, उसके ऊपर नजरसानी करते हैं और यू डिसाइड द प्रिसाइज पर्पस कि आखिर इस प्रॉब्लम का जो मसाला क्या है और इस मीटिंग का पर्पस क्या है। तो पहले तो प्रॉब्लम को रिव्यू किया जाता है और उसके बाद प्रिसाइज पर्पस को डिसाइड किया जाता है कि इस मीटिंग का प्रिसाइज मुख्तसर तौर पर पर्पस क्या है, वो उसके लिए प्लानिंग की जाती है। ऑफ ऑल पीपल द chairperson must know precisely the purpose of meeting. यानी everybody should know the purpose of that meeting. This is planning steps. In planning steps,
The concerned person or administration should inform all the people, all the participants, especially the chairperson must know the purpose of meeting. ताकि चेयर जो है वो उस मीटिंग को जब कंडक्ट करता है तो उसको अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सके। जब उसको पता होता है कि इसका मकसद क्या है तो फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बात करेंगे इधर की उधर की, तो उनको वो कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरह से मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी लिखे जाते हैं। तो उस मीटिंग का में ऊपर से मीटिंग के एजेंडा लिखे जाते हैं, फिर नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिखे जाते हैं, फिर उसमें कौन सदर का कौन करता है, चेयर पे कौन बैठेगा वो लिखते हैं, और पर्पस ऑफ मीटिंग लिखते हैं। तो और फिर एजेंडा की लिस्ट होती है। ये पेपर जो है एक बिफोर कंडक्टिंग द मीटिंग वो पेपर जिसमें प्रिसाइजली पर्पस ऑफ द मीटिंग, नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग एंड पर्पस ऑफ द ऑल द थिंग्स प्रिसाइजली एक पेपर वर्किंग पेपर होता है। वो सब कंसर्न पीपल को भेजा जाता है जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनको पता लग जाता है कि इस मीटिंग का मकसद क्या है, इसकी एजेंडा क्या है, तो इसका जो है वो प्रॉब्लम क्या है। तो फिर वो सोच समझ के they will participate the meeting and then they can, you see that, share their views, you see that properly and can give the feedback. अच्छा, इसके तो प्लानिंग स्टेज में एक प्लानिंग स्टेज ये भी है कि इंतजामिया शुड डिसाइड कि कौन कौन इसमें किस लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसको इनवाइट किया जाना चाहिए। arrange for meeting date, time and place. तो मीटिंग अरेंज करने के लिए कौन सी डेट है, टाइम क्या है, जगह कौन सी है, ये सारी चीजें सब पार्टिसिपेंट्स को पता लग जाता है, ताकि एवरी पार्टिसिपेंट शुड कम एट द फिक्स्ड प्लेस ऑन द फिक्स्ड टाइम एंड डेट एंड क्रिएट एन एजेंडा। अभी ये मैंने तो आपको बताया ना पहले से ही कि एक वर्किंग पेपर बनता है जिसमें पार्टिसिपेंट के नाम भी होते हैं, उसमें डेट और वेन्यू होता है, टाइम होता है, एजेंडा होती हैं, चेयर कौन करता है वो होते हैं। ये सारी चीज़ें पहले ही मैंने आपको बताई। फिर ये मैं पढ़ता हूँ आपके लिए कि क्रिएट एन एजेंडा। एजेंडा लिखी जाती है। एन एजेंडा इज द रोड मैप ऑफ व्हाट विल बी कवर्ड इन द मीटिंग। तो एजेंडाज की लिमिटेशंस में ही उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है, उसके ऊपर ही मीटिंग कंडक्ट की जाती है ताकि वो उसको कवर किया जा सके उस स्पेसिफिक टाइम में। 3 कोर क्वेश्चंस आर द बेसिस फॉर मीटिंग। एक तो फैक्ट, समथिंग ट्रू और नॉट। फैक्ट्स को क्लियर किया जाता है कि ये जो फैक्ट है वो सही है या सही नहीं है। वैल्यू, whether something is desirable or undesirable, उस पॉइंट का क्या वैल्यू है, whether वो desirable है या undesirable है। and policy, should something be done or not. Now 5th में distribute the announcement for the meeting, title of the topic, importance, topic questions, responsibilities, individual group, date, time and place, check on physical arrangements. तो ये एक मीटिंग कंडक्ट करने के सारे लवाजमात हैं कि लिस्ट में पार्टिसिपेंट के नाम होते हैं और फिर फिजिकल अरेंजमेंट्स वो भी, उसका भी पेपर एक बना होता है। तो सारी चीज़ें ये प्लानिंग के ज़मरे में आती हैं। तो जब प्लानिंग होती है तो फिर हर यू सी दैट एस्पेक्ट से उस मीटिंग के पूरे अरेंजमेंट्स तय कर लिए जाते हैं ब्लैक एंड वाइट में। तो फिर उसी पेपर जो रोड मैप होता है उसी के हिसाब से वो जो मीटिंग चलाता है, कंडक्ट करता है,
वो 1 by 1 स्टेप को कंडक्ट करता जाता है, और किसको पहले बोलना है, फिर किसको बोलना है, किस चीज पे किसको बोलना है, ये सारी चीजें पहले ही मेंशन की जाती हैं, ताकि वो स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जिसको बात करनी होती है उसके लिए वो तैयारी करके आए। तो ये प्लानिंग स्टेप्स हैं फॉर द सक्सेसफुल मीटिंग। प्रोसीजर्स ड्यूरिंग द मीटिंग। तो अब begin with an opening statement. तो ज़ाहिर है मीटिंग का एक तरीक़ेकार होता है। तो ड्यूरिंग मीटिंग के दौरान क्या होना चाहिए? पहले तो उसकी ओपनिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए, ऐलान होना चाहिए। A neutral, free from bias opening statement from the chairperson can get the sessions up on a positive note, state the problem. तो जो चेयरपर्सन होता है वो किसी भी ख्याल का आदमी हो, किसी भी राय का आदमी हो, किसी भी मंतक का आदमी हो, किसी भी नजरिए का आदमी हो, मगर उस वक्त जब चेयर करता है उस मीटिंग को, तो he should be neutral, free from all the biases, prejudices, तासवाद से फ्री होना चाहिए, और हकीकत में उस टॉपिक को फोकस किया जाए जिस फोकस में वो मीटिंग चलानी पड़ती है, और फिर वो सारे पार्टिसिपेंट्स के व्यूज को पॉजिटिवली, अफर्मेटिवली लिसनिंग करता है। किसी को ये एहसास नहीं दिलाता है कि मैं इस नजरिए का आदमी हूँ और चेयरमैन इस नजरिए का आदमी है इसलिए मेरी चीज को अपोज करता है। नो बात। अगर ऐसा होगा तो फिर वो मीटिंग कामयाब नहीं होगी, वो प्रोडक्टिव मीटिंग नहीं होगी। तो सेकंड है कि स्टिमुलेट डिस्कशन। डिस्कशन को किस तरह स्टिमुलेट किया जाता है? उसमें जब सारे मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं इन अ डिस्कशन, is central to a leader's responsibilities. So it is the responsibility of leader. Okay, he should involve all the members in discussion. So in meeting में जब chairman you see that announces that now all the participants will discuss on these points, on these agendas, ये rather जो मीटिंग कंडक्ट करता है, सेक्रेटरी मीटिंग होता है, वो अनाउंसमेंट करता है। फिर वो जो चेयरमैन होता है वो कहता है अब मैं आई इनवाइट दिस पर्सन टू स्पीक ऑन दिस एजेंडा। तो बीच में कोई बात करता है तो उसको आराम से प्यार से स्टॉप करता है। यस, आई विल गिव चांस, योर रिटर्न विल कम, then you can talk whatever you like. First you listen. अगर आपको सबको पहले कहेंगे कि भाई if you agree or don't agree with the speaker, do not interrupt the speaker. Just write down the questions, objections. Then आपका जब turn आएगा, तो then you say that raise the questions against that speaker. तो इस तरह से when all the members are involved in the meeting, then the stimulation will be created in that discussion and that meeting will be living. तो उसके बाद जो है कि ask questions, keep an atmosphere of goodwill and cooperation, keep calm, keep participants on the main path, take a break if situation gets too tense. So it is the responsibility of the leadership to keep the participants calm and quiet, and all the participants should be in the discipline, should be on the main path, not to lose their tempo or not to come down from the right path. So अगर इस situation tense हो जाती है
तो चेयर कैन टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम। तो उसके बाद फिर वो मेंबर्स जो है टेंस खत्म हो जाता है, आपस में बातें करते हैं या बीच में कोई आता है, तो इस तरह से टेंस जब खत्म हो जाता है तो फिर मीटिंग स्टार्ट होती है। नंबर थर्ड, अंडरस्टैंड द रोल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। में क्या होता है कि ग्रुप टास्क रोल्स, यानी हर ग्रुप को एक टास्क दिया जाता है, एक असाइनमेंट जाता है, तो उसका रोल क्या होता है? इनिशिएटर, कोऑर्डिनेटर, energizer, recorder, elaborator, opinion giver, information giver, opinion seeker। तो ये सारे एडजेक्टिव्स उस ग्रुप को दिए जाते हैं, उस लीडरशिप को। ये सारे जो हैं स्टिमुलेशंस, जो पॉजिटिव अप्रोचेस हैं, ये पैदा करते हैं उस पूरी मीटिंग में। एक तो इंफॉर्मेशन दी जाती है फुल, और ओपिनियन सीकर होते हैं, ओपिनियंस लिए जाते हैं दूसरे के, और फिर खुद ओपिनियन दिए जाते हैं और ओपिनियन को एलेबोरेट करते हैं, उसको तफसील से बयान करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और एनर्जाइजर होते हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं, लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं थ्रू देयर कोऑर्डिनेशन। और इनिशिएटर होता है, इनिशिएटर होता है। तो इस तरह से मीटिंग का जो टेम्पो है वो काम एंड क्वाइट एंड कंफर्टेबल इन डेमोक्रेटिक वे में चलता रहता है। तो वो मीटिंग प्रोडक्टिव होती है और सारे एजेंडा के ऊपर एक फिक्स्ड स्पेसिफिक टाइम में हो जाता है और रिजल्ट आ जाता है। इस तरह with the help of chair, with the help of leadership and those specific groups, meeting can be concluded in a time, and just time will be saved, and nobody will be bored। तो ये होता है, एक प्रोसीजर है जो ड्यूरिंग मीटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रॉब्लम पार्टिसिपेंट्स डिमांड स्पेशल अटेंशन। अच्छा, एक प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं, तो इस तरह प्रॉब्लम पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो बेकरार और बेसिकुन लोग होते हैं, कुछ लोग तबीयत के हिसाब से, तो उनको स्पेशल तवज्जो दी जाती है। मैं मीटिंग कंडक्ट कराता हूँ तो वो मैं देखता हूँ कि ये बंदा जो है ज्यादा बातें करता है और तजादात उभारता है, मसाला मेरे लिए क्रिएट करेगा मीटिंग में, तो मैं उसको जरा पूरा प्यार मोहब्बत और अटेंशन देके उसको उसके फेयर में कुछ तारीफी अल्फाज कह के उसको थोड़ा कोशिश करता हूँ कि वो डिसिप्लिन आ जाए। तो फिर मैं कहता हूँ देखें, ज़ाब्ते लागू हैं, डिसिप्लिन has been imposed, so nobody will come out of that discipline of the meeting, so that we can conclude the meeting within time। तो फिर इस तरह से वो जो प्रॉब्लम पार्टिसिपेंट होता है उसको, उसकी डिमांड को हमें स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। और उसके बाद ये हो गया। और उसके बाद पांचवा क्या है, कॉमन प्रॉब्लम पार्टिसिपेंट्स आर। उसमें कॉमन जो प्रॉब्लम क्या होते हैं, कॉमन प्रॉब्लम पार्टिसिपेंट्स क्या है, वो द रेटिसेंट नॉन पार्टिसिपेटिंग मेंबर, द नो इट ऑल। यानी वो पार्टिसिपेंट ऐसे होते हैं कि सब कुछ वो ही जानते हैं और वो कम ही मीटिंग्स में आते हैं, पहली मीटिंग में पता नहीं है क्या डिसाइड हुआ था, और अब आते हैं तो फिर वो कहते हैं अक्ल कुल मैं हूँ। तो जाहिर है उसके अक्ल कुल मैं हूँ, तो ये तो फिर मसला क्रिएट करेगा। तो उसको फिर हैंडल करना, तो उसको स्पेशल अटेंशन से हैंडल किया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द लीडरशिप, हाउ डज ही कंट्रोल और हैंडल दोज प्रॉब्लम पार्टिसिपेंट्स। नंबर 3, द लॉन्ग विंडेड स्पीकर। एक बात करता है, बात करते जाता है, चुप होने का नाम ही नहीं लेता।
तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएटर होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने से टेम्पो और मीटिंग का वो ज़ाया हो जाता है और लोग जो है वो बोर होते हैं। तो उसको भी अटेंशन देना है और चेयर को कंट्रोल करना है कि आपको फिर मैं आपको टाइम दूंगा, प्लीज अब आप अपनी स्पीच खत्म करें और दूसरे को आप टर्न दें, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, आपको मौका दिया जाएगा। तो फिर वो उसको स्पीक करने से चुप कराया जाता है। तो फोर्थ जो है erroneous member, those who get those who get hurt easily, बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो थोड़ी थोड़ी चीज पे हर्ट हो जाते हैं और आग बगल हो जाते हैं, गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं कि आपने मुझे ये क्यों कहा, मैंने जो बात की उसमें काटा क्यों, तो एकदम हॉट अप होते हैं। तो ये भी मसला होता है, वो प्रॉब्लम पार्टिसिपेंट होता है। ये भी the conferee who shows personal animosity, वो कन्फ्रेंस कन्फर करता है, इख्तिलाफ करता है, वो इस तरह अपनी जैसे जाती दुश्मनी, जाती अपना तज़ाद ज़ाहिर करता है। One who gets angry and shouts hateful, tactless comments to other members. तो ये सारी चीज जो जो नेगेटिव अप्रोचेस हैं वो आपके उस प्रॉब्लम पार्टिसिपेंट में होती हैं, जिसको लीडर जो है ड्यूरिंग द मीटिंग हैज टू फेस एंड हैज टू कंट्रोल। अच्छा, इसके बाद आगे भी है वही नंबर 4, अगेन प्रोसीजर्स ड्यूरिंग द मीटिंग कंटिन्यू है। इंटरप्रेट डेटा फॉर सॉल्यूशन एवोल्यूशन, जो सॉल्यूशन बताए जाते हैं उनकी डेटा को इंटरप्रेट कर जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। Then state the major conclusions and plan of action. So then during the meeting, the representative of the meeting on the behalf of chair can state the major conclusions. Case meeting के ये conclusions हैं, ये decisions हैं और ये plans हैं for future action. अच्छा, उसके बाद follow up after the meeting. Leaders should distribute the minutes of the meeting and ensure that departments or individuals appointed to complete decided actions should complete those actions. Minutes should include. तो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है ना, जो एक्सपर्ट होते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग में कि वो देर एंड देन लैपटॉप के ऊपर टाइप करते जाते हैं, तो उसी वक्त की मिनट्स ऑफ मीटिंग बन जाते हैं। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने में, लिखने में एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको फिर जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट और स्ट्रेट होते हैं, प्रिसाइज होते हैं कि बिल्कुल मिनट्स ऑफ मीटिंग उनको पता होता है कि किस तरह मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाए जाते हैं। तो फिर वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है, वो चेयर जो है ना, वो जो लीडर है वो सब वो ऑर्डर करेगा कि minutes of meeting should be distributed among the participants, और उसमें फिर मोड ऑफ एक्शन होता है, नहीं प्रॉब्लम होता है, उसका सॉल्यूशन होता है, और मोड ऑफ एक्शन होता है वो कौन करेगा। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो है ना असाइन की जाती हैं। तो जब फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग मिल जाते हैं तो हर एक को पता है और फिर वो घर पे और फिर उसको पता है कि मुझे क्या, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अच्छा, तो उस मिनट्स शुड इंक्लूड, उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, पहले ऊपर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट और ग्रुप, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग का एक फॉर्मेट होता है। नेम्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, सिग्नेचर ऑफ द अथॉरिटी हु रिकॉर्डेड द मिनट्स। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में इंक्लूड होती हैं। और participant responsibilities in meetings.
प्रिपरेशन फॉर मीटिंग्स। पहले प्लानिंग थी, अब प्रिपेयर किस तरह की जाए मीटिंग, उसमें क्या होता है। तो पहले तो जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी जो रिस्पांसिबिलिटी असाइन की जाती है इन मीटिंग्स, वो सारी चीजें लिखी जाती हैं। उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मीटिंग प्रिपरेशन की जाती है। तो उसके लिए पहले व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन। Check your data, confirm your conclusion. The phrase I don't know in response to boss's question is harmful to your career. तो ये प्रिपरेशन ऑफ मीटिंग्स होती है, तो सारी इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट की जाती है, जो प्लानिंग स्टेप्स उठाए जाएंगे या मीटिंग में क्या किया जाएगा, जो अभी हम डिस्कस करके आए, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड होती है। फिर आप उस डेटा को चेक करते हैं और फिर कंफर्म योर कंक्लूजन। तो उस मीटिंग को चलाने के लिए आपकी जो रिस्पांसिबिलिटी है उनको आप कंक्लूड करते हैं, पाय तकमील तक पहुंचाते हैं। फिर बॉस का जो if chair asks any question, the phrase I don't know, because boss never likes to listen I don't know. Whatever boss says, you have to answer. So it's up to your ability and up to your, the homework, it's up to your planning, and it's up to your knowledge about the meeting, the collected information which is in your mind, or वो टिप्स या पॉइंट्स या वर्किंग पेपर सारे आपके सामने होते हैं। तो whenever you see that boss or the chairperson asks question, you quickly can reply the question of the chair. If you say, sir, oh sorry sir, I don't know, then it is very much harmful to your career. Your job may be finished. So be over prepared. अच्छा, अब be over prepared का वही मैंने बताया ना आपको कि आपको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मीटिंग की, उससे concerned from every aspect of the meeting. You must know each and everything. Therefore, you are advised to collect information and check your data, confirm, ensure that your data is correct, nothing is wrong in your data, and उसके बाद conclusion क्या होगा उसको आपने confirm करना है। तो whenever anybody asks you question, if boss asks you question or second authority asks question or other participants ask you question, if you say sorry I don't know, I'll tell you later on, तो ये आपकी कमजोरी साबित होगा और कहेंगे कि आप जो है ना, आप में वो एबिलिटी नहीं है जो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो सही तौर पर अदा कर सके। आपकी जिम्मेदारियां जो हैं वो आप पूरी नहीं कर सकते, यानी एक टास्क जाएगा तो फिर आपकी नौकरी, जो आपका करियर है वो खत्म हो सकता है। इसलिए आपको ओवर प्रिपेयर होना चाहिए, बाकायदा फुल प्रिपेयर हो, हर चीज का पता हो कि जो भी पार्टिसिपेंट बात कहे एकदम आप उसको जवाब दे सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी एक बंदे की या हर एक पार्टिसिपेंट की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ये अगेन this is continue participant responsibilities in meetings, effective participant roles in meetings। अब वो उसमें हमने प्रॉब्लम पार्टिसिपेंट को डिस्कस किया था शायद। हाँ, यहाँ
प्रॉब्लम पार्टिसिपेंट के क्या मसाइल, प्रॉब्लम पार्टिसिपेंट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स एंड odd situation is created by the problem participants, उनको किस तरह कंट्रोल करना है, उसको उसके लिए आपने एक प्रोसीजर बनाया होता है. उस अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेप्स whatever you have made plans and सारे प्लानिंग स्टेप्स आपके होते हैं कि कहाँ चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो किस तरह चेयर उसको हैंडल कर सकती है, या जो मीटिंग कंडक्ट कराता है वो किस तरह उसको हैंडल कर सकता है. तो ये तो है प्रॉब्लम पार्टिसिपेंट. अब हम यहाँ पार्टिसिपेंट रोल्स, इफेक्टिव पार्टिसिपेंट रोल्स. इफेक्टिव पार्टिसिपेंट रोल्स इन मीटिंग्स. तो एक तो प्रॉब्लम पार्टिसिपेंट होता है, अब ये है आपका इफेक्टिव पार्टिसिपेंट. उसका रोल क्या है. प्रॉब्लम पार्टिसिपेंट का रोल मीटिंग में हमने डिस्कस कर लिया कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. जहाँ आपका इफेक्टिव है पार्टिसिपेंट, उसका रोल क्या है मीटिंग में. तो उसमें ऑर्गेनाइजर होता है. आई फील वी आर वॉन्डरिंग अराउंड द टॉपिक. तो जब बात चलती रहती है तो वॉन्डरिंग होती है, यानी डिस्कशन इज स्टार्टेड without having any purpose, that is wandering discussion. So he can, when he feels, he can identify it or inform the chair. Okay, now we have been twisted from the topic. We are wandering now. So I suggest we return to the main subject. हमारा जो सब्जेक्ट है, जो पॉइंट है, टॉपिक है, we should talk on that. We should not wander here and there, which in my estimation is what criteria should be considered for any foreign expansion. तो ये आपका इफेक्टिव पार्टिसिपेंट होता है जो उस चेयर को हेल्प करता है to conduct the meeting properly and productively. तो इसके बाद ये क्या है कि clarifier points are misunderstandings, attempts to make clear unclear expressions, or opposite ideas. तो पहले तो एक ऑर्गेनाइजर है कि उसमें इफेक्टिव पार्टिसिपेंट कैसे है, और फिर वो इफेक्टिव पार्टिसिपेंट एक ये भी होता है कि वो क्लेरिफायर होता है कि some misunderstanding have been created during the meeting. So now एक इफेक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, दूसरा वो ये क्लियर करता है कि सर some misunderstandings have been created, so we have to clear the misunderstandings in the interest of this meeting. So I suggest to do some attempts, to do some take some actions to make clear unclear expressions. तो ये आइडियाज आ गए हैं, यूजलेस वॉन्डरिंग आइडियाज आ गए हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है पार्टिसिपेंट के बीच में. तो फिर वो चेयर जो होता है उसको वो अटेंशन तवज्जो दिलाता है और उसको क्लियर करता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरह की है. तो फिर वो जो चेयर है उसको फोकस करता है, अटेंशन देता है और फिर सॉल्व करता है और फिर मीटिंग को अगेन ट्रैक पे ले आता है. Number 3, questioner, factual contributor, valuable participant who bring valid, credible data to a meeting, but do not arrogant, just be positive. तो एक फैक्चुअल कंट्रीब्यूटर तो हकीकत में कंट्रीब्यूटर होते हैं,
what you contribute, what you get, how you become the valuable participant. When you will be counted as valuable participant, when you bring some valid and credible data. Whenever you talk with some evidence. Whenever you talk, your mind speaks, your wisdom speaks. Everybody becomes fond of your listening or suggestions. Yes, ये जो तो सब उसी की तरफ देखते हैं जब प्रॉब्लम्स मीटिंग आता है, मुख्तलिफ लोग बातें करते हैं और सॉल्यूशंस नहीं फाइंड आउट किया जाता है, तो फिर उसी को सबकी नजरें उसके ऊपर आ जाती हैं जो एक फैक्चुअल कंट्रीब्यूटर होता है, जो एक वैल्यूबल पार्टिसिपेंट है, जो एक क्लियरिफायर पार्टिसिपेंट है और एक ऑर्गेनाइजर होता है। तो फिर वो एकदम उसको फुल डेटा होती है, जहन में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, हाईली नॉलेजेबल पर्सन होता है। तो फिर वो ऐसी बात करके सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम की बताता है कि सब क्लैपिंग करते हैं, यस दैट्स वेरी गुड। तो ये एक वैल्यूबल पार्टिसिपेंट होता है और चेयर आल्सो लुक्स टू दैट पार्टिसिपेंट, व्हाट इज ही गोइंग टू स्पीक। अच्छा, नंबर 5, energizer. Energizers pursue ways of keeping persons interested and motivated. तो एक पार्टिसिपेंट ऐसा होता है कि वो परस्यू करता है, ऐसे रास्ते ढूंढता है, ऐसी बातें करता है कि he becomes successful to keep the person interested. All the person show their interest in meeting because of, you see, that energizer कि वो ऐसी कोई शुगुफ्ता बात करता है कि सब हंसने लगते हैं या रिफ्रेश हो जाते हैं। और तो इस तरह से वो उनको मोटिवेट करता है कि all the participants should take interest in the meeting. उसको हम एनर्जाइजर कहते हैं कि वो एनर्जाइज करता है सब पार्टिसिपेंट को। नंबर 6 is you see that idea creator. तो एक क्रिएशन तो एक गॉड गिफ्टेड क्वालिटी होती है, सब लोग क्रिएटर नहीं होते। तो क्रिएटर हमेशा नई आइडियाज क्रिएट करता है, तो उसका जहन एकदम तेज होता है कि वो जब सॉल्यूशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं भी मिलता है तो वो एकदम बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिविटी दैट पार्टिसिपेंट गिव्स सम सॉल्यूशंस to solve the problem. Number 7, critical tester. Number 8, conciliation. तो conciliation में you see that conciliator deadlocks are not uncommon in meeting. हमेशा मीटिंग्स में डेडलॉक हो जाते हैं। Participants become stand at no point of return, तो वहाँ डेडलॉक हो जाता है। Both sides refuse to budge. Violent disagreements do occur. तो झगड़े हो सकते हैं और एक दूसरे की बात सुनने के तैयार नहीं होते हैं, तो एक डेडलॉक पैदा होता है मीटिंग में। तो you as a conciliator, मसलहत करने वाला, attempt to find a middle ground, तो वो देखता है उनकी पॉइंट्स उसने सुनी है, उसकी पॉइंट्स सुनी है, तो उनको भी जानता है जो आपस में नया अपना ओपिनियन रखते हैं, वो अपना ओपिनियन रखते हैं और एक डेडलॉक हो गया है। तो उसको पता होता है कि मैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिविटी, वो कंसिलिएटर जो है वो जो इस्लाह के साथ मसलहत कराने में कामयाब हो जाता है अपने एक टेक्स्ट से। उसको एक आर्ट होता है। तो आप एक बीच का रास्ता ढूंढ निकालते हैं कि दोनों पार्टियों में जो डेडलॉक है वो खत्म हो जाता है, फिर बात करने पर आमादा हो जाते हैं, तो मीटिंग जो है वो कंटिन्यू होती है। हेल्पर ऑफ अदर्स, एक पार्टिसिपेंट ऐसे होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
वो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं. Helps those who are unable to participate but tactfully, sensitively and cooperatively. तो है वो जो हेल्पर होता है, तो उन लोगों को जो कुछ कम ही आता है पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनको ये हेल्प करता है कि हाउ दे स्टार्ट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग. तो वो एक टैक्टफुली उनको हेल्प करता है. उनको ये महसूस नहीं होता है कि हमें कुछ नहीं आता है, ये हमें गाइड करता है, डिक्टेट करता है, क्योंकि वो बड़े हिसास तरीके से बड़े तावन के साथ ये उनसे बात करता है और हेल्प करता है उनको जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. मगर इसकी हेल्प करने से दे स्टार्ट आल्सो टॉकिंग इन द मीटिंग और स्टार्टेड to take part in the meetings. So these are participants' responsibilities. Different participants are there. So the responsibilities vary from participant to participant, from member to member, and there are great responsibilities of the leadership or the chair who conducts the meeting, who holds the meeting, and in a discipline, he concludes the meeting in a proper way, and the meeting concludes with positive approach. So this is your strategies for successful business and group meetings. My lecture is ended. Hopefully you understand it and try to read it again and go through करें, तो इंशाल्लाह आपको ये strategy आ जाएगी. हो सकता है ये क्वेश्चन इसमें से कोई क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आ जाए. तो अल्लाह हाफिज, टेक केयर. अल्लाह आपको हाफिज और नासिर.